و حاضرین محفل میری پردہ نشین والوں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وہ کون ہے راہ لاچار بیٹھے ہیں، مسافر ہیں سفر کی ہمت ہار بیٹھے ہیں۔ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو اس مجمع کے باہر ہیں، ان کے لیے شعر ہے۔ وہ کون ہے راہ میں لاچار بیٹھے ہیں، مسافر ہیں سفر کی ہمت ہار بیٹھے ہیں۔ غلام مصطفیٰ ہو دوستوں آ جاؤ محفل میں، الگ بیٹھے ہو لگتا ہے چوکیدار بیٹھے ہیں۔ اگر آپ چوکیدار ہیں تو بیٹھے رہیں، اگر غلام مصطفیٰ ہیں تو مجلس میں آ جائیں۔ نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم غریبوں کے غفار، مدینے کے تاجدار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کا سہارا، یتیموں کا حامی، غریبوں کا والی، بے باؤں کا سہارا، کالی کالی زلفوں والا آقا، پیارے پیارے چہرے والا آقا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ نے بعد نماز عشاء سے لے کر ابھی تک نعت و منقبت سنی اور تقریر بھی سنا۔ میں نے نام تو بہت سنا ہوگا تھا، لیکن حاضری پہلی بار ہوئی۔ تو جس طرح نام سنا ہے ویسے آپ لوگ ہیں کہ نہیں مجھے بھی پتہ چل رہا ہے۔ سننے کے لیے بیٹھے ہیں نا آپ لوگ؟ یہ اس میں فوٹو لگی ہے، سب لوگ ہیں، جانتے ہیں سب ہیں؟ ہمارا اس کی تصویر اس پوسٹر میں لگی ہے، اس میں لوگ اپنا جن کی فوٹو اس پہ لگی ہے، آپ ہی لوگ غیر ذمہ دار ہو جائیں گے۔ ہاں، تو ان کا کیا ہوگا؟ بہت بڑی بات ہے۔ جس کی فوٹو یہاں لگی ہے وہ یہاں بیٹھ جائے۔ جی جی، بیٹھ جائیے یہاں پر، اور جو کام ہے وہ ابھی ختم کر لو۔ میرا بھائی جو ادھر ادھر اسٹیج کے پیچھے ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری گفتگو میں مصروف ہے میرا بھائی، وہ لوگ بھی آ کر کے یہاں بیٹھ جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر اپنی نیکیوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو پورے مجمع کو تقسیم کر کے چلے جائیں۔ زمین کو چھوڑ کر پنڈال پر بیٹھے ہوئے ہیں، قالین بچھی ہے پھر بھی بول دو آپ کے لیے، آپ آ نہیں رہے نا، بول دے کیا؟ زمین کو چھوڑ کر پنڈال پر بیٹھے ہوئے ہیں، قالین بچھی ہے پھر بھی الگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سبحان اللہ بولتے نہیں۔ شعر کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا بھوک ہڑتال پر؟ بولو مچل کر مانگے شبر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ۔ جب تک آپ سنیں گے تب تک میں سناؤں گا، جب آپ کھل جائیں اشارہ کر دینا، ٹھیک؟ یہ ہمارا انجن ہے، یہ اگر آگے بڑھے گا تو بہت بڑھے گا۔ جی جی، مانگے شبر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ۔ آپ سبحان اللہ بولتے جائیے اور شعر سنتے جائیے۔
मांगे शब्बर रब हबले की दुआएं मुस्तफ़ा, हम करे आराम तखलीफे उठाए मुस्तफ़ा, और बाद तखलीके दो आलम खालिके कुल ने कहा, हाय हाय हमने तो बनाई दुनिया अब चलाए, हमने तो बनाई दुनिया अब चलाए मुस्तफ़ा, मांगे शब्बर रब हबली की दुआएं मुस्तफ़ा, जिसने हम करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर लिया, और कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्ने हैदर के लाखों से हाय हाय शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। वाह, ये हम नहीं कह रहे हैं, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का ये अल्फाज है, हम नहीं कह रहे हैं। मेरी आवाज को आवाज दे रही है लेकिन जुमला हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का हाय हाय। देखते हैं जो ख्वाजा से मोहब्बत करता है वो सुभान अल्लाह। शाह अस्त हुसैन या बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदार नादार दस्ते दरे दस्ते यजीद, हक़्क़ा के बिना ला इला अस्त हुसैन। हाय सुभान अल्लाह। हज़रात वाह वाह, मेरा उसूल है कि मैं कुछ गुफ्तगू करने से पहले बेहतर ये समझता हूँ, और इसको पढ़ने से हमारा ईमान भी ताज़ा हो जाता है और हमारे इल्म में इजाफा भी होता है। हाय हाय, वो हुजूर का शजरे नसब है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर का शजरा आप लोगों ने सुना है, जो फूट रहा है फूटने दो, वो लगा इसीलिए। आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं थोड़ी देर के लिए। वाह, हुजूर का शजरा सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? जिसने नहीं सुना है वो हाथ उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर सुनना चाहते हैं बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीश, हम बोलेंगे आपका लफ्ज़ चलेगा, हमारा भी चलेगा आपका भी, पक्की बात है। देखते हैं, चल बोलिए या रसूल अल्लाह। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मिलाई, मिलाई के बेटे बियानत, बियानत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमक के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं सुनाएंगे, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, पीछे वाले हाथ पे उठाए या रसूल अल्लाह। अब एक बार बोले या नबी अल्लाह, अब बोल रहे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सदा समाधि। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मिलाई, मिलाई के बेटे बियारत, बियारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे सुलहब, सुलहब के बेटे शाले, शाले के बेटे आमिर, आमिर के आपा के बेटे तारीफ। मजमे में दम नहीं है, दम नहीं है। ऐसा बोलो पूरे अमरोजे तक आवाज गूंजे आपको, और मुझे लगे कि मैं अमरोजा में पड़ा, महसूस होना चाहिए। फिर से एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मिलाई, मिलाई के बेटे बियारत, बियारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे सुलहब, सुलहब के बेटे शाले, शाले के बेटे आमिर, आमिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रामा, रामा के बेटे तारीख, तारीख के बेटे नाफिर, नाफिर के बेटे तारीख, तारीख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़कीरुल्लाह, इस्माइल ज़कीरुल्लाह के बेटे अमाम, अमाम के बेटे हमें, हमें के बेटे साबिर, साबिर के बेटे सुलेमान, सुलेमान के बेटे ईसा, ईसा के बेटे अली अता, अली अता के बेटे औद, औद के बेटे इमाम, इमाम के बेटे इज़रान, इज़रान के बेटे महल, महल के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास के बेटे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई मस्जिद में खड़ा होकर नारा लगा दे मेरे गाँव में और रोना का कोई नारा लगा। अब लग रहा है अमरोजा में जलसा कोई है जो नारा लगा सकता है?
भाई, वाह वाह यार रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन ये ज़ईफ है, कोई नौजवान नारा लगा, ज़ईफ है, नौजवान नारा लगा। क्यों? एक मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा जो दरख्त होता है ना, उसको किसी भी तरफ आप झुकाओ वो झुक जाएगा, और जो पेड़ बन जाता है ना, उसको अगर झुकाओगे तो वो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। तो मैं बात नौजवानों से कर रहा हूँ, नौजवान नारा लगा सकता है कोई? लेकिन नौजवान जवाब देते भाई, नारे तकबीर। और इतनी आवाज है भाई। काशिफ ने कहा था कि मुअर्रिज़ जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीन वालों, हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पे दीन से हम नारे तकबीर लिखते हैं। ये शेर की रसाई अगर आप तक हो जाए तो मलंग जवाब से इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोधाए करो बना, खाजा का हिंदुस्तान, हमारा भारत जियालो चुन्नी मुसलमान, मुसलमाना ने अमरोदा, मशरक़े आले अज़मत, फैज़ाने हुजूर का भी शरीया, फैज़ाने गुलामाने हुसैन। अब मैं सिर्फ लास्ट में रुकूंगा जहाँ ये सजदा पूरा होगा, उससे पहले नहीं रुकेंगे। जो बात रुक चुके हैं आप लोग को आजमाने के लिए। बोलिए या रसूल अल्लाह। तारीफ सुनिएगा। जनाब हजरत आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मिलाई, मिलाई के बेटे बियारत, बियारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाम, जुल्हाम के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे काका, काका के बेटे राबा, राबा के बेटे तारिक, तारिक के बेटे कादिर, कादिर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे जाहिर खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे आदम, आदम के बेटे हमल, हमल के बेटे सादिक, सादिक के बेटे सुलेमान, सुलेमान के बेटे लहिसा, लहिसा के बेटे अलीअता, अलीअता के बेटे अबूब के बेटे अव्वाब, अव्वाब के बेटे अदनान, अदनान के बेटे बहार, बहार के बेटे नज़र, नज़र के बेटे बदर, बदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूलू के बेटे काब, काब के बेटे मुर्गा, मुर्गा के बेटे कलाम, कलाम के बेटे किसे, किसे के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूल। माशाअल्लाह, वाकई अब रोजा में पड़ रहे हैं, साफ कर दिया आप लोगों ने। ये सिर्फ मैंने अपना इल्म में इजाफे होने के लिए। अब चलिए मैं आपको कुछ सुनाता चलूं। हज़रात, आज हम और आप यादगारे करबला कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। ये बड़े किस्मत वाले लोगों को ये वक्त नसीब होता है। और यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर पे लेटे होंगे, शायद मेरे नबी ने उन्हें दावत नहीं फरमाया मेरे नबी ने, वरना वो भी यहाँ हाजिर होते। चलो मैं आपसे अब बात करने लगा हूँ, ये इमाम हुसैन है कौन? क्यों इनके इतने चर्चे हैं? क्या किया है इन्होंने? लोग इनको क्यों इतना मानते हैं? जानना चाहेंगे ना? बोलिए यार। हज़रात, एक मर्तबा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा पढ़ रहे थे। जुमे का खुतबा मेरे नबी पढ़ रहे थे। यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछो जब इमाम खुतबे के लिए निकल जाए, नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, हाथ पैर चलाने की इजाजत नहीं, इधर उधर देखने की इजाजत नहीं। लेकिन जब मेरा नबी मस्जिद नबवी में बैठकर, मेंबर पर बैठकर खुतबा पढ़ रहा था, इतनी
دیر میں امام حسن اور امام حسین مسجد میں داخل ہو گئے. امام حسن امام حسین مسجد میں داخل ہو گئے. کچھ دور چلتے ہیں تو امام حسین کا جو پیر ہے آپ کے کرتے میں پھنس جاتا ہے اور اس وجہ سے آپ زمین پر گر جاتے ہیں. زمین پر آ جاتے ہیں. جب زمین پر گر گئے زمین پر امام حسین آئے تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا اے بلال جاؤ امام حسین کو اٹھا لو, اے سلمان جاؤ امام حسین کو اٹھا لاؤ, بلکہ میرے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا, منبر چھوڑ دیا, بول کر امام حسین کو اٹھایا اور منبر پر لا کر بیٹھایا. ایک طرف امام حسن ہے, ایک طرف امام حسین ہے. میرے نبی نے دونوں نوازوں کو ساتھ میں بیٹھایا اور ایک تاریخی جملہ کہا, اے مسلمانوں سنو, یہ اولاد بھی اپنے باپ کو اتنا کمزور کر دیتی ہے جس کے لیے میں نے خطبہ چھوڑ دیا, میں نے خطبہ چھوڑ دیا, اٹھانے کے لیے چلا گیا. فوراً اللہ کی بارگاہ میں میرا نبی فرماتا ہے اے پروردگار عالم یہ میرے نواسی ہے, میرے نواسے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت فرما. اور فرمایا اے اللہ اے پروردگار عالم جو بھی ان سے محبت کرے خدا تو بھی ان سے محبت کرتا. اور کہہ رہا ہے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, عظمت امام حسین. یہ میرا نبی فرما رہا ہے اے پروردگار عالم جو ان سے محبت فرمائے تو بھی اس سے محبت کر. اور اسی مسجد کا ایک واقعہ میں اور شاعر اہل سنت شاداب رضا کانپوری صاحب انہوں نے ایک اشعار پڑھا تھا سجدے پر. چلو میں اس سجدے پر آتا ہوں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے, نماز کا وقت ہے, میرے نبی امامت فرما رہے ہیں. اب یہ بتاؤ میرے نبی خالی مسلمانوں کے لیے نبی ہیں, وہ ساری کائنات کے نبی ہیں, فرشتوں کے بھی نبی, نبیوں کے بھی نبی, ساری کائنات کے جناتوں کے بھی نبی ہے نا. اب میرا نبی سجدے میں, مومنوں کی معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین. مومنوں کی معراج جو ہے وہ نماز ہے, اور نماز کی معراج جو ہے سجدہ. اور کائنات نبی سجدے میں, توجہ سے کائنات نبی سجدے میں, ماننا پڑے گا جب کائنات نبی نبیوں کا سردار سجدے میں ہے تو سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی سجدے میں ہے. جب سارے نبی سجدے میں ہے, سارے مسلمان سجدے میں ہے, سارے ملائکہ سجدے میں ہے, گھوڑے سجدے میں ہے, غلمان سجدے میں ہے, جنات سجدے میں ہے, انسان سجدے میں ہے, میرا نبی بھی سجدے میں ہے. اسی عالم میں امام حسین مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور جا کر میرے نبی کے اپنے نانا کے پشت پر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ درس دیتے ہیں اے مسلمانوں دیکھو تمہارا مسلح زمین ہے, ہمارا مسلح نانا کی پشت ہے. عزیزان گرامی اب میرا حسین اپنے نانا کی پشت پر بیٹھا ہے. میں ایک چیز اور بتاتا چلوں, جب امام حسین نبی کے پشت پر بیٹھے ہیں بیٹھ گئے تو نبی کے دل میں خیال کس کا آ گیا؟ نبی کے دل میں خیال کس کا ہے؟ امام حسین کا. لب پر نام کس کا ہے؟ نبی کے لب پر نام کس کا ہے؟ اللہ کا. دل میں کیا ہے؟ امام حسین. نبی تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, دل میں حسین ہے سبحان ربی الاعلیٰ. حسین ابھی بیٹھا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. حسین کو تکلیف نہ ہو سبحان ربی الاعلیٰ. حسین زمین پر نہ گر جائے سبحان ربی الاعلیٰ. ابھی حسین اٹھا نہیں سبحان ربی الاعلیٰ. میرا نبی 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اٹھا گیا. میرا حسین پشت پر بیٹھا ہے ابھی اترا نہیں. ساری کائنات نبی کا انتظار کر رہی ہے, اور میرا نبی کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کس کا انتظار نبی کر رہا ہے؟
किस्से का तारीखी जुमला देकर जाऊंगा और बाबा वालों, सारी कायनात किसका इंतजार कर रही है? बोलिए। रसूल का इंतजार सारी कायनात कर रही है, लेकिन मेरा रसूल किसका इंतजार कर रहा है? नहीं नहीं, इतना हल्का जुमला नहीं तो आपके समझ में आ जाए, इतना हल्का जुमला नहीं। सारी कायनात इंतजार रसूल का कर रही है, लेकिन मेरा रसूल वही का इंतजार कर रही है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा। मेरा नबी कुछ नहीं करता, मेरा नबी वही कहता है जो उस पर वही नाज़िल होती है। कुरान कह रहा है मेरा नबी, अल्लाह फरमा रहा है मेरा नबी अपने तरफ से कुछ नहीं करता, इशारा तक नहीं करता, वही कहता है जो मैं कहता हूँ। समझे? जुमले पर गौर कीजिए। अब कायनाते नबी सफे में सारी दुनिया कायनाते इसका इंतजार कर रही है। सारे नमाजी जैसे कि आपके यहाँ इमाम होंगे, मैं यहाँ पर थोड़ी देर गुफ्तगू रोक कर एक आपको जुमला दे दूँ। आप नमाजें पढ़ने जाते होंगे, इमाम साहब नमाज पढ़ाते होंगे, एक सजदे में कितना वक्त लगता है? बहुत ज्यादा आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट। एक बार सुभान अल्लाह कम से कम 7 मरतबा 9 मरतबा कितना पढ़ते हैं ना। और अगर उनको आधा घंटा लग जाए, एक नमाजियों में हलचल सी मच जाएगी ना। देखो कहीं इमाम साहब अल्लाह को प्यारे तो नहीं हो गए, ऐसा तो नहीं है। हजरत मलको मौत तो उनकी रूह को नहीं ले गए, रूह तो परवाज नहीं कर गई, होती है ना। जब आधे घंटे जब 1 मिनट का सजदा, आधा मिनट का सजदा, आधा घंटा लग रहा है, एक खलबली सी मच जाती है। और जब मेरा नबी सजदे में था, वक्त गुजर रहा था, नमाजियों में हलचल सी मच गई। समझिए, नमाजियों में हलचल सी मच गई। और जब हलचल मच गई तो एक उठा, उसने देखा इमाम हुसैन बैठे थे। दोबारा फिर सजदे में, जुमले पे गौर कीजिए, दोबारा फिर सजदे में दूसरा उठा क्या देखा? इमाम हुसैन बैठे हैं। फिर सजदे में तीसरा उठा क्या देखा? इमाम हुसैन बैठे हैं। फिर सजदे में चौथा उठा क्या देखा? इमाम हुसैन बैठे हैं। फिर सजदे में जरा कोई ऐसी हदीस लाओ कि मेरे नबी ने नमाज के बाद ये कहा हो कि नमाज को दोहरा लिया। न जाने इमाम हुसैन के मोहब्बत में मुसलमानों ने कितने सजदे कर दिए। एक जुमला और मैं आपको देता चलूं। एक मरतबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी के जान पर बैठे हुए थे, और इश्क देखो इमाम हुसैन का और नबी का, नाना का और नवासे का इश्क देखो। मेरा नबी फरमाता है, आए इमाम हुसैन ये बताओ मैं अफजल हूँ या तुम अफजल? हर किसी को हजम नहीं होगा, जुमला हजम नहीं होगा किसी को। क्या फरमाया? खानदान के एतबार से आप लोग ये ना सोच लेना कि मौलाना आए थे ये कह गए इमाम हुसैन अफजल है, नबी अफजल नहीं। खानदान के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, नबी से अफजल पूरी कायनात में कोई नहीं। ठीक, हाँ, अब ये बात हो रही है। मेरा नबी अपने नवासे से फरमा रहा है, इमाम हुसैन जरा ये बताओ मैं अफजल हूँ या तुम अफजल हो? क्या कहा? मैं अफजल हूँ या तुम अफजल हो? इमाम हुसैन का जुमला सुनो, कसम से ईमान ताज़ा हो जाएगा। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ नाना जान मैं अफजल हूँ। क्या कहा? नाना जान मैं अफजल हूँ। मेरा रसूल फरमाता है, ऐ नवासे हो कैसे? तो आप अर्ज करते हैं, ऐ नाना जान जैसा मेरा नाना है वैसा आपका नहीं। क्या कहा? बोलो तो सुभान अल्लाह बोलिए। जैसा मेरा नाना वैसा आपका नहीं, जैसा मेरा बाबा वैसा आपका नहीं, जैसी मेरी माँ वैसी आपकी नहीं, जैसा मेरा भाई वैसा आपका नहीं। कहा क्यों? कहा मेरा नाना नबियों का सरदार, मेरा बाबा वलियों का सरदार, मेरी माँ करीजों की सरदार, मेरा भाई जन्नत का सरदार, और मैं हुसैन शहीदों का सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे चौराहे करो बड़ा।
मैं ले चलता हूँ। हाँ, तो मैं कहा था कि मेरा नबी सजदे में पुश्त पर इमाम हुसैन। अब सारी कायनात इंतजार किसका कर रही है? आज के जलसे का तारीखी जुमला दे के जाऊंगा और लास्ट वाला जुमला ऐसा होगा, मजमे में खड़े होकर गाना लगना चाहिए। जो आज का जुमला तारीखी इस मजमे का बनेगा। तो जब सारी कायनात इंतजार कर रही है नबी का और मेरा नबी इंतजार कर रहा है वही का, वही इंतजार कर रही है जिब्राइल का। सारी कायनात इंतजार कर रही किसका? नबी का। और मेरा नबी इंतजार कर रहा है वही का, वही इंतजार कर रही है जिब्राइल का। और जिब्राइल इंतजार कर रहा है खुदा का, वही इंतजार कर रहा है। सारी कायनात इंतजार नबी का कर रही है, मेरा नबी इंतजार कर रहा है वही का, वही इंतजार कर रही है जिब्राइल का। और जिब्राइल इंतजार कर रहा है खुदा का, और खुदा इंतजार कर रहा है हुसैन का। अब आप कहीं मौलाना ये खुदा हुसैन का इंतजार कर रहा है। तो अभी मैंने कुरान पढ़ा ना, अभी वही करता है जो उसको हुक्म होता है खुदा का। अब अल्लाह इंतजार कर रहा है इमाम हुसैन का, और उसी पुष्ट पर इमाम हुसैन एक बात और कह रहे हैं, ऐ नाना जान, अगर आज आपने मेरी वजह से 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ा, अगर आप नबियों के सरदार हैं तो मैं भी शहीदों का सरदार हूँ। एहसान का बदला एहसान से दूंगा। अगर आज आपने मेरे लिए 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ा तो कल मैदानों कल्बों बना में मैं अपने 72 जानिशान को शहीद कर दूंगा तुम्हारे नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अच्छा लग रहा है आप लोग? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? हाथ उठाएं। अल्लाह ताला इन सब के इल्म में, उम्र में, रिस्क में खैर और बरकतें अता फरमाए और इन्हें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन से ऐसी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अब हुसैन ने कहा, ऐ नाना जान, अगर आप नबियों के सरदार हैं तो हम शहीदों के सरदार हैं। हर जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान। आपने 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ा, तस्बीह पढ़ी, तो मैं मैदान करबला में 72 जानिसार आपके नाम पर पढ़ता हूं। और कह रहा है इमाम हुसैन। अब हजरात, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? सिर्फ तकलीफ थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं? मैं बस एक बात अबू बकर की जान मैं पेश करनी थी, जहाँ शुहदाए करबला का जिक्र होए और जहाँ नबी का जिक्र हो, वहाँ पर जो है सहाबा का भी जिक्र होना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि अगर हम सहाबा का जिक्र, हजरत अबू बकर कौन थे कैसे पता चले? हजरत अबू बकर वो थे जब मेरा नबी अपने नबुव्वत का ऐलान फरमा रहा था, मक्के के बाजार पर पहुंचा था, मैं नबी हूँ, अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूँ, मैं बशारत इब्न मरियम हूँ, जिसकी खुशखबरी हजरत ईसा पैगंबर ने दी थी, मैं वही नबी हूँ। जब मक्के वालों से ये कहा तो मक्के के चौधरी खड़े हो कहने लगे, ये बताओ मोहम्मद, तुझे 1 साल हो गया है ऐलान करते हुए, बताओ तुम्हारा कलमा किसने पढ़ा? तो मेरा नबी फरमाता है कि हजरत बिलाल ईमान लाए हैं, अली ईमान लाए हैं, हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा है। तो मक्के के चौधरी कहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, अली इब्न सच्चा, अगर सच्चा है मगर फिर भी तो 8 साल का बच्चा है। अगर गुलाम ने अगर बिलाल ने कलमा पढ़ा तो वो तो गुलाम है,
अगर खदीजा ने कलमा पढ़ा तो वो तो बीबी है। कोई ऐसा बताओ जो आकिल भी हो, जो बालिग भी हो, आजाद भी हो, समझदार भी हो। समझिए बता रहा हूं कि अबू बकर कौन है। समझिए, जब ये दाना तो सारे बताने दिया कि ये बताओ ऐसा कोई आदमी पेश करो जो आकिल भी हो, बालिग भी हो, आजाद भी हो, समझदार भी हो। तो मेरा नबी खामोश। अब ये खबर हजरत अबू बकर के कानों तक पहुंच गई। उस वक्त हजरत अबू बकर मक्के की अदालत की कुर्सी पर बैठे थे। उन्हें मालूम हुआ कि मेरे यार